Hi, good afternoon, everyone. I'm Tanveer, your host for today, and with me is my co-host. हाय आई एम सृजन। सो तनवीर, ले चलते हैं सबको एक बार फिर से 1999 की तरफ। हाँ, क्यों नहीं? So today we are gathered here to commemorate the 21st anniversary of India's victory against Pakistan in the 1999 Kargil War. On this day, the Indian Army successfully completed Operation Vijay. The Kargil War lasted for about 3 months with heavy casualties on both sides. Winning the war was crucial for us as because of the high peaks of the Kargil area, the National Highway 1 came under the direct sight of the enemy fire and cutting off the Union territory of Leh and Ladakh from essential supplies. The battle was such fierce that it saw the movement of Bofors and extensive use of fighter jets such as MiG 21 at such high altitudes, which was unknown to the world. Our soldiers showed such exemplary courage that they gave their life with a smile on their face. I would like to quote here Captain Vikram Batra, also known as Sher Shah. He said, either I will come back after. ओवर टू यू। All right, Srijan. So now we would like to start with the events of the day, and we will start with Okay. the introduction. So now we have our Vice Chancellor of Punjab University, Professor Rajkumar sir, with us. He has a message for all of us. So let's proceed. Day that makes every Indian proud and will do so for the generation to come. India celebrates the Kargil Vijay Divas on July 26th. It was on this day 21 years ago that the Indian Army recaptured all the Indian posts in Kargil that had been occupied by Pakistani infiltrators during Operation Vijay. It is heartening to see that the saga of courage, valor, and sacrifice of brave soldiers of Indian Army motivates younger generation in these difficult times of COVID-19. This further strengthens resolve of India to fight against challenges in the 21st century. I joined UIT students and alumni for taking this initiative to commemorate Kargil Vijay Divas and pay my floral tributes to the brave soldiers who laid their lives for the nation. I have come to know that various cultural clubs join hands with alumni cell to check out this online program. Let us take this motivate us to take Punjab University further on the path of progress in science and technology with the remarkable contribution by young minds. Once again, I pay my floral tributes to the Kargil martyrs that paved way for the Vijay of India on the perpetrators. Jai Hind. Honorable guests and my dear students, I am happy to see that Cultural Club and Alumni Cell of UIT has taken this Honorable guests and my dear students, I am happy to see that Cultural Club and Alumni Cell of UIT has taken this novel initiative of celebrating Kargil Vijay Divas in these difficult times of COVID-19. Today, as we mark the 21st anniversary of Kargil Divas, every Indian is commemorating the valor and inspiring saga of dedication to the nation. On this occasion, I pay tribute to all the brave soldiers who had filed the conspiracy of bringing down the tricolor from the peaks of Kargil. I salute the martyrs who sacrificed their blood and all the mothers who gave birth to all those heroes.
This style of bravery of the Indian Army gives pride to every Indian even today because they become our sunshines whenever the skies are grey. My dear students, saluting our brave soldiers, let's take the pledge that we will not let their sacrifices go in vain. Rather, we will seek inspiration from them and will dedicate ourselves and our duties towards the nation so that we can make India of their dreams. With this spirit, saluting those brave hearts who laid down their lives, I urge all of you to say along with me, Jai Jawan, Jai Hind. Thank you, ma'am, for the deep message. So now we have with us our हमारे इंडियन आर्मी की जिस तरह से उन्हें ट्रेन किया जाता है जी हाँ और चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर हाँ एक लास्ट लाइन में बोलना चाहूंगा जब भी हम एक मिलिट्री एरिया में जाते हैं तो एक चीज लिखी जाती है इज्जत वफादारी दस्तूर ये 3 चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए जो इन सही बात 3 चीजों को याद रखते हैं वो कभी अपनी मिट्टी से अलग नहीं हो सकता और उसको दुनिया के और लाभों का कोई उसके लिए रहता नहीं उनका महत्व तो हाँ। लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सेशन सृजन नाउ तो अब हमारे पास अगली परफॉर्मेंस आने वाली है और अगली परफॉर्मेंस एक ऐसे शख्स के साथ होने वाली है जो कि अभी हाल में ही TES SSB में सेलेक्ट हुआ है यस यू गेटिंग इट राइट ही इज देवांश मैकेनिकल सेकेंड ईयर और ही इज सून गोइंग टू ज्वाइन इन OTA गया तो इतने अच्छे दिन पर हमारे पास एक ऐसा परफॉर्मर है ही इज गिटारिस्ट वोकलिस्ट भी है और टुडे ही विल सिंग for us on this auspicious event. So let's listen him. जीना 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 रे थोड़ा गुलाब माई तेरी चूनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चूनरिया लहराई जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा माई रे मुझे a very nice song Srijan Devansh lovely song my friend Srijan Yes तन्वीर इस गाने में वाइब भी अलग है जैसे इस गाने पे जितने भी डांस परफॉर्मेंस और हम कुछ भी देखते हैं इस गाने की बात ही अलग है हाँ चल to our viewers अब
जो कि ये गाना था, ये बहुत अच्छा था, दिल को छू गया। एंड अब सृजन अपना इंट्रोडक्शन तो क्या खुद देगा। मैं किस काम के लिए बिठा रखा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट वी हैव विद अस इज सृजन विद हिज स्टोरी। सृजन, द माइक इज ऑल योर्स। प्रस्तुत है आपके समक्ष ये कहानी, जो कि भारतीय सरजमी पर जान कुर्बान करने वाले वीर जांबाज अशोक चक्र से नवाजित मेजर मोहित शर्मा जी की है। कहानी सबकी अलग है, लेकिन सफलता के सिद्धांत नहीं बदलते। जो काम अक्सर जुनून करवा देता है, वही मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही थे कुछ मोहित जी। बड़े बाल, अच्छे कपड़े और गिटार एवं नृत्य का शौक रखने वाले। इनका जन्म 1978 में रोहतक, हरियाणा में हुआ। माता पिता की 2 संतानें थीं। इनके बड़े भाई 4 साल बड़े थे। बड़े भाई का एनडीए एग्जाम ना निकल पाना इनके लिए चुनौती खड़ी कर रहा था। माता पिता भी इंजीनियरिंग के पक्ष में झुक चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा। तो इन्होंने जेंटलमैन कैडेट बनना ही उचित समझा एवं 12वीं के बाद एनडीए निकाला। 1999 में मद्रास रेजिमेंट में भर्ती होने के बाद इन्होंने श्री गणेशी कई बेहद खतरनाक एनकाउंटर्स के साथ किया। अभी तो रुकना ही नहीं था। 2003 में गैलेंट्री अवार्ड मिला एवं इसके बाद आया पैरा एसएफ का जुनून। पैरा एसएफ भारतीय सेना की सबसे कठिन और खतरनाक ट्रेनिंग में से एक है। हमें इस ट्रेनिंग में कमरे के अंदर से लेकर भयानक जंगलों से होते हुए खुले में लड़ने की सिखाई जाती है। कश्मीर भेजना इनके जीवन का वो अहम मोड़ रहा, जहां इन्होंने असाधारण वीरता का नेतृत्व करते हुए आतंकवादियों का डटकर सामना किया। अपने साथियों के साथ मिलकर आतंकवादी को धराशायी करने पर चीफ आर्मी स्टाफ यानी कमांडेशन मेडल भी मिला। 2009 में कैप्टन से मेजर बनने के बाद उन्हें टीम के साथ हफरुदा के भयानक जंगल जम्मू कश्मीर भेजा गया। अशोक चक्र, जो कि सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, वो आसानी से नहीं मिलता। 21 मार्च 2009 जंगलों में हुए मुठभेड़ के वक्त मेजर की टुकड़ी संकट में थी। अपनी 10 लोगों की ब्रावो टीम का नेतृत्व करते हुए गोली लगने के बाद भी, गौर कीजिएगा, गोली लगने के बाद भी एक ग्रेनेड फेंककर 4 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। और ऐसे हैरत अंगेज कारनामे हमें इनसे ही उम्मीद था। आगे अब तो ये मॉडर्न जमाना आ गया सृजन, ईमेल वगैरह व्हाट्सएप चलता है। पहले कुछ अलग बात होती थी, समय का इंतजार होता था और वो एक अंदर संदेशे आते थे। हाँ, संदेशे आते थे। हमारा अगला एक्टिविटी भी कुछ इस तरीके की है। वी हैव लेटर्स ऑफ कारगिल। सृजन, बताइए आप आगे। तो सबसे पहला लेटर जो कि हमारे सीनियर भूपेश यादव लेकर आने वाले हैं। भूपेश सर 4th ईयर में है, तो सुनते हैं इनका लेटर। हेलो एवरीवन, मैं जो लेटर पढ़ने वाला हूँ ये परमवीर चक्र कैप्टन मनोज कुमार पांडे 1st 11 गोरखा राइफल्स के द्वारा लिखा गया है। कैप्टन मनोज पांडे से जुड़ी हुई एक स्टोरी कुछ इस तरह है कि उनकी यूनिट का मिशन था खालूबार पोस्ट पर अटैक करना। बट खालूबार पोस्ट के जस्ट नीचे वहां पे एक बंकर एरिया है। उस बंकर एरिया में 6 बंकर्स थे जिनको ध्वस्त करने का काम मनोज पांडे को सौंपा गया। मनोज पांडे ने 3 बंकर्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ गोलियां लगी जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। इतना घायल होने के बावजूद भी उन्होंने चौथे बंकर पर एक ग्रेनेड फेंका और उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन जब वो ग्रेनेड फेंक रहे थे तो दुश्मन की कुछ गोलियां आकर उनके सर पर लगी। इसके बावजूद उन्होंने अंतिम सांस लेने से पहले 2 शब्द कहे, ना छोड़ूं, जिसका मतलब है डोंट लीव देम। और वीरता का इतना अद्भुत प्रदर्शन देखने के बाद वहां मौजूद सभी सैनिकों का उत्साह इतना बढ़ गया कि जितने भी बचे कुचे दुश्मन थे उन्होंने उन सब का सफाया कर दिया। आइए पढ़ते हैं मनोज पांडे का आखिरी लेटर। आदरणीय पापा, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहकर आप लोगों के मंगल की कामना करता हूँ।
कल ही सोनू के बारे में पता चला। जानकर प्रसन्नता हुई कि उसकी तबीयत ठीक है। यहाँ के हालात आप लोगों को पता ही हैं, पर आप ज़्यादा चिंता ना करें क्योंकि हमारी पोजीशन दुश्मन से काफ़ी अच्छी है। हालांकि इनको हराने में कम से कम 1 महीने का समय अवश्य लगेगा। सोनू से कहना कि अगर वो PC4 की कोचिंग करना चाहता है तो अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में BSc एडमिशन की कोशिश भी अवश्य करें। NDA में हो गया तो बहुत अच्छा है। पुनः हम शायद लड़ाई समाप्त होने पर ही आ सकेंगे। घर में क्या काम हो रहा है लिखना, अगल बगल क्या हालचाल है। यहाँ के हालात तो आपको पता ही हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बस भगवान पर भरोसा रखना और प्रार्थना करना कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। बाकी यहाँ काफ़ी ठंड है, हालांकि दिन में बर्फ ना पड़ने पर मौसम ठीक रहता है। और ये जो पार्ट है इस लेटर का वो सही में दिल छू लेता है। यहाँ पर वो लिखते हैं, आप लोग चिट्ठी जरूर डालना क्योंकि लड़ाई के मैदान के बीच में चिट्ठी पढ़ना कैसा लगता है शायद आप लोग इसका अनुभव नहीं कर सकते। मेरी चिंता मत करना, आपका बेटा मनोज। इसके अलावा मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा कि खालूबार पोस्ट को जीतने से पहले मनोज ने कुछ बातें कही थी जो आज मिलिट्री के काफ़ी फेमस कोट्स बन चुके हैं। तो पहला है कि सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। और जो दूसरा कोट है जो काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन रहता है, इफ़ डेथ स्ट्राइक्स मी बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई विल किल डेथ। तो ये मनोज पांडे की वीर गाथा में से कुछ थोड़े से अंश जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद So, भूपेश तनवीर, सर। हाँ जी, जैसे कि हम कंक्लूड कर पा रहे हैं, अगर हम जितनी भी बात करना चाहेंगे फोर्सेस के बारे में, तो एक डिसिप्लिन वर्ड है जो हर जगह से निकल कर आ रहा है। जैसे अभी हम लेटर्स का ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें ये सिर्फ लेटर्स नहीं है, हम ये फील कर सकते हैं कि पेशेंस कितना ज्यादा होता है उन लोगों को। कोई चिट्ठी भेजी, अब वो जा रही है, अब कितने दिनों बाद आएगी, उन तक पहुंचेगी भी कि नहीं। ऐसी ऐसी चोटियों पर पोस्ट होते हैं जहां हो सकता है नेटवर्क कनेक्शन ना हो, कुछ ना हो। तो जिस तरह से पेशेंस के साथ मातृभूमि की सेवा कर रहे होते हैं, मतलब पूरा देश ही उनका परिवार है, ये माटी ही उनका प्यार है। मतलब उन्हें अपने परिवार वालों की हाल खबर कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी डट कर लगे होते हैं। तो ऐसे वीरों को हम सिर्फ नमन ही कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? हाँ सृजन, यही बात है कि उस समय ये 4G का जमाना नहीं था, एक चिट्ठी ही साधन था इतनी दूर तक अपनी बात पहुंचाने का। एंड ये कितना कितना समय इंतजार करते होंगे कि अच्छा, अगर आप ये सोचिए कि जैसे ये बता रहे हैं कि किसी का अगर घर पे कोई काम होगा, किसी की सेहत के बारे में पूछना होगा, आपके कितना अशांति से भरा दिमाग रहता होगा और कितना प्रेशर रहता होगा कि अच्छा सब ठीक तो होगा वहाँ। और मुझे मनोज कुमार पांडे जी का मुझे एकदम से यूनिट उनकी याद आई। ही इज फ्रॉम गोरखा राइफल्स। गोरखास को माना जाता है कि टू दिस डेट, जो कि नेपाल के अंदर गोरखा रेजिमेंट अभी भी है, एंड जो कि ब्रिटेन की क्वीन डायरेक्टली नेपाल से गोरखास को रिक्रूट करती है अभी भी, कि आप इनका शौर्य इतना ज्यादा है, इनका वीरता की गाथा इतनी पुरानी है कि अभी भी ये बहुत शूरवीर माने जाते हैं। तो इसी के और साथ तनवीर, एक पॉइंट जो हम समझ सकते हैं कि चिट्ठी चाहे जैसी हो, खत चाहे जैसा हो, उसमें खबर जैसी भी हो, लेकिन उन चीजों को अपने दैनिक कार्य जो कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी मिली है, उस पर हावी नहीं होने दे सकते। ये चीज भी बहुत ज्यादा खास है। जैसा कि अभी हमने सर से सुना, तो सर जिस तरह से बात कर रहे थे, सर ने अंत में इस चीज के बारे में बताया, वो हमें एक भी किसी पॉइंट पे सर से ऐसे पता नहीं चला। मतलब अपने भाव को, अपने इमोशंस को मन के अंदर छुपाना और बाहर से वही दिखाना जो जरूरी है, ये भी कितनी ज्यादा प्रेरणादायक चीज है। हाँ सृजन,
इस ऐसे माहौलों के साथ अपने आप को ढालना कोई आसान कार्य नहीं होता. It's too difficult to mold yourself with such circumstances. And तो बढ़ाते हैं इसको फिर आगे. now moving with, we have next with us is Bhargav for letters from Kargil. Bhargav. Good afternoon. The letter I'm going to recite today is written by Captain Sumit Roy, Veer Chand. Bhargav, sorry to interrupt you. आपके पीछे लाइट बहुत आ रही है. आपकी फेस देखने में दिक्कत हो रही थी हमें. Is it all right now? Yeah, better. So the letter I'm going to recite the enemy sentries. There was a panic in the enemy camp, and enemy fled, leaving behind huge amount of ammunition and arms. So the last letter he wrote goes like this: Hey Ma, I hope you're keeping fine, and so is Dad. I'm fine here and getting along with my duty well. You must have read in the newspaper about the capture of point 4700. You will be proud to know that I led that attack and successfully captured point 4700 and another adjoining feature. Since then, we have successfully captured the other feature and have been figuring in the newspaper and radio news every day. There is another proud movement in the store, as I have been recommended for a gallantry award to be declared on 15th August 1999. At present, I'm having a very good time in battalion in terms of respect and reputation. So as far as I've led my company into 3 successful attacks, that is on 5140 and 4700. Our unit move has been confirmed to Jamnagar by February 2000. So the advance party will leave by February. My VIOs are now rescheduled for October 15th. How is Puppy? He must have come back from his VIOs and must be availing his leave. You can tell him to keep the notes at Delhi so that I can collect them from there prior to my VIOs. How is your job and classes going on? Hope Baba is keeping fine nowadays. I shall try to leave prior to my course in September, but nothing is certain so far. Don't worry about me. I'm taking adequate care of myself. Nothing to worry from my side. Take care and write soon. P.S. I have cleared all my Part B exams. Love, Gucci. Captain Sumit Roy displayed exemplary leadership, indomitable spirit, and valor in face of the enemy, and contributed immensely towards the capture of 4700. He will always be remembered as the brave son of our nation. Thank you. शुक्रिया भार्गव. अगर आप सोचें कि क्यों लड़े, एक पहाड़ है, पहाड़ की चोटी है, उसके ऊपर एक बंकर होता है, एंड स्टैटिस्टिक्स जो अभी तक हैं, जो कि ऊपर बैठा होता है उसके पास एक टैक्टिकल एडवांटेज होती है. जैसे उस ऊपर जाने के लिए अगर हम उनका एक बंदा मारने की कोशिश करेंगे, जो नीचे से हमला करेगा उनके 10 मारे जाएंगे. इस तरीके के ऑड्स जब कोई फौजी जाता है और जब उन्होंने वहां पर अटैक करा होगा, उनको ध्यान में होगा यहाँ पर अगर हम आज यहाँ पर 100 लोग ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, हम में से हर एक वापस नहीं नीचे आएगा. ऐसी वीर गाथाओं को ही अगर हम याद रखें, अपने साथ लेकर चलें और आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताएं, तभी हम अपने देश का सुधार कर सकते हैं. और तनवीर, यही मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब किसी सिविलियन एरियाज में हम लड़ रहे होते हैं, जहां पर लोग हैं, प्रॉपर बस्ती है, लोग बसते हैं. क्योंकि हमारे आर्मी के एथिक्स हैं कि हमारा हमेशा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अपने नॉर्मल लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. मतलब कुछ भी हो जाए, वो टेररिस्ट वो अगर पकड़ में ना आए, लेकिन हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए. तो ये चीजें और ज्यादा उनके ऊपर संकट बढ़ा देती हैं. लेकिन फिर भी इन सब चीजों के साथ निकलते हुए वो जिस तरह से मैनेज करते हैं, ये कुछ खास है. तो फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव भारत विथ अस. सो भारत, स्क्रीन इज योर्स.
everyone. Thank you for having me on this auspicious day of Kargil Vijay Diwas. I'm going to read the letter of Captain Anuj Nair. Captain Anuj Nair was भरत only 20. आपकी आवाज में थोड़ा हवा आ रही है, साफ नहीं आ पा रही। Only fine now? Hello? हाँ, अब ठीक है भरत, सॉरी। So I'm going to read the letter of Captain Anuj Nair. Captain Anuj Nair was only 23 when he laid down his life fighting for our nation. He was an Indian Army officer of 17th Jet Regiment who was posthumously awarded the Mahavir Chakra, India's second highest gallantry award for exemplary valor in the combat during operations in the Kargil War in 1999. It was the success of his mission that led to the capturing of Tiger Hill that ultimately made the enemy forces withdraw from the battle. The last letter he wrote to his family was on 22nd June. Dear Dad, got your inspiring letter on 14th June. Don't worry, I have yet to face an opponent who can win from me. That day can never come when I have to admit defeat. Fear was never in the dictionary you gave me as my dad. Well, you are 200% correct. The ground here never hides anything. I have honed up my skills in the art of fighting with weapons, knives, and bare hands too. Don't worry, because nothing ever worries your son. Just worried about you, fight. Take care of yourself, and my gentlemen and officers promise will celebrate your 25th anniversary in August. Dad, take care of mom, as she worries a lot. You must be. So Tanvir, what's next? Yeah. देने वाले भारत के अनेक रणबांकुरों में से एक वीर चक्र विजेता कैप्टन विजयंत थापर की शौर्य गाथा की संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करने का सौभाग्य कारगिल विजय की 21वीं वर्षगांठ पर आज मुझे प्राप्त हुआ है। दरअसल कैप्टन विजयंत के रूप में हमारे समक्ष एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जिसमें एक पुत्र का बलिदान है, पिता का स्वाभिमान है, मां के त्याग का यशोगान है और राष्ट्र का सम्मान है। कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर हिंदुस्तान देश के हर युवक के लिए अनुकरणीय है। अपने वतन के लिए मर मिटने का जज्बा क्या होता है, वही इस चिट्ठी का सार है। हृदय में शौर्य का संचार करने वाली इस चिट्ठी को मैं कैप्टन विजयंत थापर के शब्दों में ही सुनाना चाहूंगा। Dearest Papa, Mama, Granny and Body, the time you get this letter, I'll be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsara. I have no regrets. In fact, if I become a human again, I'll join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian Army fought for you tomorrow. As far as the unit is concerned, the new chaps must be told about this sacrifice. I hope my photo will be kept in Akoy Mandir with the Karni Mata. Whatever organ can be taken must be done. Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Ruxana per month and meet Yogi Baba. Best of luck to Birdie and never forget this sacrifice of these men. Papa, you should feel proud, and Mama, so should you. Mama ji, forgive me for everything wrong I did. Okay then, it's time for me to join my clan of the Dirty Dozen. My assault party has 12 best chaps. Best of luck. Live life king size. वो 28 जून 1999 की चांदनी रात थी। अब तोलोलिंग से आगे फतेह की तैयारी थी। दुश्मन अभेद्य बंकरों में गोला बारूद के साथ जमा हुआ था। कैप्टन जानते थे कि कदम कदम पर मौत छिपी हुई है, किंतु सर पर कफन बांधकर चलने वाले को मौत का कैसा डर। कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें 50 कदम पीछे आने को कहा, किंतु कैप्टन ने कहा कि यहां से पीछे आने का मतलब है कि पाकिस्तानियों को आगे बढ़ने का मौका देना। और फिर 2 राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी के साथ टूट पड़े पाकिस्तानियों पर। मौत का तांडव। अगली सुबह सभी ने देखा कि उस इलाके में पाकिस्तानियों की लाशें बिछी हुई थी। एक और मोर्चा फतेह हो चुका था। मगर बहुत अच्छे से आपने सुनाया।
जैसा कि हम ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं सारे लेटर्स में या बायोग्राफी में हमने जो पढ़ा है, देखा है, मात्र महज 22 या 30 साल की जिंदगी में ये इनके पास ये नहीं हम कह सकते कि शुभ्रा मैम 4th ईयर में है, इसी ब्रांच। तो सुनते हैं शुभ्रा मैम की जुबानी। So what I'll be narrating today is more around tense. Daddy, as usual, kept making conversation with us about school, studies, other activities, and I, in my head, was making plans for a time there. I forget the secret. डैडी को जाना है, आप लोग अच्छे से रहना, छुट्टियां एंजॉय करना और मम्मी को तंग मत करना। Still confused, we just nodded our head. तो बुलाते हैं प्रतीक को, प्रतीक शर्मा, इसी 3rd ईयर, जो कि आज एक वीर रस की कविता हमें सुनाने वाले हैं। सो कबीर, स्क्रीन इज योर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक कविता लेकर, जिसका भाव है कि वो क्या महसूस करती है जब उसे पता लगता है कि उसका हम आपको देख पा रहे हैं। हेलो प्रतीक, हाँ थोड़ा लैग आ रहा है। ऑडिबल? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, और कारगिल विजय दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक कविता लेकर, जिसका भाव है कि एक माँ क्या महसूस करती है जब उसको पता लगता है कि मेरा बेटा शहीद हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये भाव समझ आएगा कि ख्वाहिश थी मेरे लाल की देश के लिए कुछ कर जाने की, ख्वाहिश थी मेरे लाल की देश के लिए कुछ कर जाने की, ललक थी उसमें मेरे लिए जीने की और भारत पे मिट जाने की। शहादत को उसकी ये जहां भूल ना पाएगा, क्योंकि खून का बदला अब खून से लिया जाएगा। बोला था कि लौटूंगा एक दिन, सर पर कफन बांधे जो निकला था। देश के वीर का हौसला देखकर डर का पत्थर भी मोम सा पिघला था। उसके परिवार के आंसुओं का बोझ पूरा हिंदुस्तान सर पर उठाएगा। अब खून का बदला अब खून से लिया जाएगा। गर्व है मुझे तुझ पे कि तू कुर्बान हुआ वतन के लिए। गर्व है मुझे तुझ पे कि तू कुर्बान हुआ वतन के लिए। जी लेगी वो हर एक माँ बूंद बूंद आंसुओं को पिए। जी लेगी वो हर एक माँ एक बूंद बूंद आंसुओं को पिए। पर अब आतंकवाद के उस इंसान को सलीके से मिटाया जाएगा और खून का बदला खून से लिया जाएगा। खून का बदला खून से लिया जाएगा। जय हिंद। जय हिंद प्रतीक। गूज़बम्प्स थे यार इस कविता में। तो मतलब देखा होगा आपने, तनवीर नोटिस किया होगा, एक रेट से बढ़ रही थी कविता। स्टार्ट हुई, करते 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 जो वीर रस बढ़ रहा था कविता में, तो वो एक रेट से, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। हाँ, और यही एक बात होती है कि कविता लिखने में भी कठिन होती है, सुनाने में और भी कठिन हो जाती है। कि अगर आपके दर्शक सुनकर महसूस ना कर पाए, एक फीलिंग ना उमड़े, तो मजा नहीं आता। पर यहाँ प्रतीक ने बहुत अच्छे से किया है वो। सही बात है। हाँ। तो तनवीर, हमने जैसा भी जिक्र कर रहे थे पहले कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ऐसे शब्द अक्सर अभी हमारे खत में आए, हमने उनके बारे में सुना, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उनके बारे में। तो मैं बताना चाहूंगा परमवीर चक्र के बारे में। परमवीर चक्र इज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया, जो कि ग्रांट होता है फॉर कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी इवेंट्स के लिए इन प्रेजेंस ऑफ एनिमी। लास्ट टाइम परमवीर चक्र 6 जुलाई 1999 में दिया गया था। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। अभी तक 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है। फिर आती है बारी महावीर चक्र की, ऑल्सो नोन एज MVC।
तो ये सेकंड ग्रेटेस्ट अवार्ड है। इसके मिलने का रीजन भी सेम है। इट इज सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया एंड अवॉर्डेड फॉर acts of conspicuous bravery in presence of enemy on land, sea or in the air. Last it was awarded in 2001 और अभी तक till date 218 recipients already हो चुके हैं इसके। तो तनवीर, would you like to extend it? Yeah, I would like to add to its region, जो कि हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, ये 3 हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और जो कि हमारे पीस टाइम इसी तरीके के शौर्य को जो कि जताते हैं वो हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और एक और है तीसरे, सेना मेडल भी से भी नवाजा जाता है। स्पेसिफिक मैं अब आपको बताना चाहूँगा कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध के अंदर 4 परमवीर चक्र दिए गए थे और 11 महावीर चक्र गए थे। जिन 4 लोगों को परमवीर चक्र मिला था मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जो कि हमारे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव थे, महज 19 साल की उम्र में उनको परमवीर चक्र मिला। At a mere age of 19, when all of us think about, okay, let's have a fancy party at Domino's, or let's go to some club, maybe it's a dance party. That guy, being such a young recruit, he was awarded with one of the highest gallantry awards in India, Paramveer Chakra. एक कह सकते हैं अभी तो हम अपनी कलम से ही सीख रहे हैं, तब उनके हाथ में एक बंदूक थी उस समय में। और भारत में ये माना जाता है ऑफिसर्स लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड इवन आवर सोल्जर्स व्हेन द टाइम कम्स दे लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड दे डोंट शाई अवे फ्रॉम गिविंग आउट देयर लाइफ। नमन है इन सैनिकों को, इन वीरों को हमारे। एक और जो कि मैं बात बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी कहानी थी कि जो कि संजय कुमार जी थे, इनका एक और दोस्त था, तो दोनों के नाम सेम थे एंड इनमें से एक ने शहादत दे दी थी उस समय। एंड घर पे गलती से चिट्ठी गलत चली गई थी और कंफ्यूजन हो गया था कि ये क्या हो गया है, कि अच्छा परमवीर चक्र मिला है, किसको मिला है। एंड तब हमारे संजय कुमार जी अस्पताल में थे। जब सब कुछ करेक्शन हुई, कहते अच्छा परमवीर चक्र हमें मिला है, तब उन्हें पता लगा कि मेरे पास है, वरना थोड़ा उथला पुथली हो गई थी कि कहीं और चिट्ठी चली गई। ऐसा रहता है। पर आप देखिए, हर एक चीज का अपना एक स्वाद है। तनवीर, मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में। खास बात उनसे जुड़ी हुई कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या बेहतर बताना चाहेंगे उनके बारे में थोड़ा और? हाँ, ये मैं स्पेसिफिक चीजें भी बताना चाहूंगा। जो कि बत्रा जी थे, इनका ही हैज अ ट्विन ब्रदर आल्सो, बिल्कुल डिट्टो कॉपीज हैं। एंड इनको लव कुश से इनकी मामा बुलाते थे। एंड बत्रा जी डीएवी से पढ़े हुए हैं, डीएवी कॉलेज सेक्टर 10। आप सभी आते जाते रहते होंगे अगर आपके दोस्त होंगे तो। जो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल बाहर बत्रा साहब का एक बुत है। एंड वहाँ पर एक रिवाज है डीएवी कॉलेज में जाके, जितने भी आप एनसीसी के छात्र देखेंगे ना, वो एक बारी सलूट दे के जाते हैं या नमन करके जाते हैं जब भी वहाँ से गुजरते हैं। मैं चाहूँगा कि हम भी इस तरीके का अपने में चेंज लाएं कि हाँ, हम उनका नमन करें। फिर बत्रा जी ने जब अपनी बैचलर्स की डिग्री वहाँ कर ली थी, मास्टर्स के लिए वो पंजाब यूनिवर्सिटी आए थे इंग्लिश डिपार्टमेंट में, बट तब उनका आईएमए में सिलेक्शन हो गया था। एंड देन ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी एंड ही वेंट टू आईएमए देहरादून। एंड बत्रा जी का एक और था, क्विंट है, यूट्यूब के ऊपर आप क्विंट को सर्च कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि फौजियों के पास दिल कम होता है, आपको उनकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा सा पता लगेगा।
बत्रा जी के बारे में एक कहानी है कि he was kind of a dramatic person also, कि उनको ऐसे जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, she was at once uncertain कि okay will you marry me or what. So what बत्रा साहब did, उन्होंने ब्लेड निकाली अपने वॉलेट में से, उन्होंने अपनी अंगूठे पे काट लिया and like उन्होंने मांग भर दिया and he said okay Mrs. Batra, he did it, actually he did it. Maybe I'm not correct with my words, but he did something exactly similar. तो ऐसे मस्त मौले लोग होते हैं। तो फिर बढ़ाते हैं कारवां आगे, हमारी चर्चा तो चलती रहेगी। आगे हमारे पास एक सिंगर है हिमांशु राणा। हिमांशु इज बेसिकली इन 3rd ईयर नाउ, आईटी ब्रांच, और काफी अच्छा गाता है हिमांशु। हम उसकी परफॉर्मेंस पहले भी एंजॉय कर चुके हैं, तो देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। This is Himanshu Rana, and the first song I am going to present to you all is Zindagi Maut Na Ban Jaye from Sarfarosh. So here we go. जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो यारो। I hope you are liking it so. एक तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियां सहमी है, बस्तियां सहमी हुई, सहमच मनज़ारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है, आग पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो यारो। Next song is Sarfaroshi Ki Tamanna from the movie Shahid Bhagat Singh. So let's start. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सूर्य कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है।
डोरियां उम्मीद की ना आज हमसे छूट जाए, मिलके देखा है जिन्हें वो सपने भी न रूठ जाए। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए, हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। Thank you, Himanshu Bhaiya. Very nice song. क्या खूबसूरती से गाया तनवीर। हिमांशु ने कितने अच्छे अच्छे गाने चुने और कितने खूबसूरती से उन्हें निभाया है, कितने अच्छी तरीके से गाया। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, मजा आ गया उस गाने में। जो वीरता का स्वाद था वो हम सब तक पहुंचा। बहुत ही ज्यादा शानदार हिमांशु, आप हम सबको सुन रहे होंगे। वेरी गुड ब्रो, कीप इट अप। जी हाँ, शुक्रिया इनका बहुत। अब हमारे साथ अगले हैं भूपेश, जो अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे पास। भूपेश जी आइए प्लीज। ओके, मेरी कविता इस तरह से शुरू होती है। ओ माई मेरी तू जब रोया करती थी, ओ माई मेरी तू जब रोया करती थी, जब दंगे होते थे और लोग मरते थे, खून के छींटों से तेरा दामन गीला था। ओ माई मुझको तू माफ़ कर देना, ओ माई मुझको तू माफ़ कर देना। मैं घर में सोता था, घुट घुट कर मरता था, पर लड़ने से डरता था, मैं लड़ने से डरता था। अब जाकर मुझ में एक हिम्मत आई है, मैं खौफ की सब बातें दफना कर आया हूँ। तुझ पर जो छींटे हैं उन्हें साफ कर दूंगा, तुझ पर जो छींटे हैं उन्हें साफ कर दूंगा। मैं अब लड़ जाऊंगा, शायद मर जाऊंगा, मैं अब लड़ जाऊंगा, शायद मर जाऊंगा। तेरे शहीद सितारों में मैं भी चमकूंगा फिर, और तेरी गोद में सर रखकर फिर सो जाऊंगा, तेरी गोद में सर रखकर फिर सो जाऊंगा। मेरी अगली कविता। लोग पूछते हैं क्या वही देशभक्त होते हैं? बात केवल इतनी है कि बस वही अपनी जान देते हैं। जब वो जिंदा होते हैं तो उन पर पैसे फेंके जाते हैं, जब वो जिंदा होते हैं तो उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, मरने के बाद पैसे फेंके जाते हैं। पर फिर भी हर मुश्किल में वही काम आते हैं, कभी दुश्मन से, कभी मौसम से, कभी नेताओं से, कभी सरकारों से। दंगों के पंगों में, 26/11 के हमलों में, उत्तराखंड की त्राही में, कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में, राजस्थान के रेगिस्तान में, कभी जंग पाकिस्तान में, सियाचिन की ऊंचाई में तो कभी चीन की खिंचाई में। इस देश की हर मुश्किल से लड़ते हैं वो। हाँ, हर कोई देशभक्त है, पर देश के लिए मरते हैं वो। धन्यवाद। बहुत ही शानदार भूपेश भैया। हर कोई देशभक्त है पर देश के लिए मरते हैं वो। ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। बहुत शानदार। तो तनवीर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं शुभम गुप्ता सर। शुभम गुप्ता सर बेसिकली अगर देखा जाए तो अब एल्यूमिनाई की कैटेगरी में आते हैं, पास आउट हो चुके हैं
और सर के साथ पूरे कॉलेज ने सभी ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो सर एक तरह से डिसिप्लिन का अच्छा खासा जीवित एग्जाम्पल है। तो चलिए सुनते हैं सर आज क्या प्रस्तुत करने वाले हैं। सो शुभम गुप्ता सर, स्क्रीन इज योर्स। Hi, Shubham sir. Hi. There's a technical glitch. I need to stall you for a few minutes. Hello, Shubham sir. Can't hear you. हाँ, आप सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. I'd like to stall you for a minute. AP sir is here with us. All right. हाँ जी, sure. So, all right, guys. All of this, what we are doing today, is because of the initiative of our teachers who told us and mentored us to do something. So now I would like to call Professor Amrinder Pal Singh, teacher coordinator of Cultural Committee in UIT, our own college. And it's all a teamwork of UIT. So to commemorate this Kargil Vijay Divas, today we are celebrating the 21st anniversary of this. One little bit for 10-15 minutes in between on YouTube when I joined. So he was guiding you guys how to take your time, how to spend your time in a meaning. And this is all the cultural clubs, Osmium, Euphoria, Dance Committee, our Vice Chancellor, Professor Rajkumar ji, and our Director, Professor Savita Gupta, who has also taken part by sending their messages to this program. Suggest that all these clubs, they can showcase. So to conclude, I would end with to all the soldiers who laid down their life for the honor of the highest order. And with this, I give you for your bright future. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. It's a pleasure to have you with us. Thank you for all your blessings. मैं बस यही बताना चाहूँगा कि सर टीचर कोऑर्डिनेटर है हमारे सारे क्लब्स के साथ, और जो भी परमिशंस वगैरह कुछ भी जो पास होता है तो सर के थ्रू पास होके जाता है। तो इट्स रियली एनकरेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे साथ इस तरह के टीचर हैं जो हमें एनकरेज करते हैं कि हाँ आगे आओ, परफॉर्म करो। कोई भी क्लब है, कोई भी कमेटी है, कहीं बाहर परफॉर्म करना चाहती है तो उसके लिए शो अप, बिकॉज कॉलेज लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट स्टडिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज, किसी भी चीज में अपना ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना, तो सर उसमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. And also, guys, we must remember that whenever our juniors join us, we need to show them that during this COVID period, we are one of the colleges. We have put up a great show. We have kept us connected and by virtual means, and even our teachers help us in this. So now, one thing that I have noticed that all the efforts that are done by UIT students, they have their own channels or their own visibility. Like for example, music club has their own visibility. They have but everything is in scattered here and there. So if somebody can put at one place, so that will create a much better space for the
from the point of view of an outsider who would see that UIT has so much of activities, Precisely, sir. so much opportunities are there. So if somebody can do this, that will be really very useful. Sure, sir. Yes, sir. So all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So, all right, guys. Next, I would like to welcome Anahat Deensah ma'am, Teacher Coordinator for Students Team for Alumni Affairs Cell UIT. Ma'am has been a student of our college as well. And ma'am, we would like to welcome you. Good evening, everyone. On behalf of the UIT alumni, Good evening, everyone. Good evening, everyone. On behalf of the UIT alumni, Good evening, everyone. On behalf of the UIT alumni cell, I would like to express a heartfelt gratitude to all the members and speakers. On the occasion of Kargil Divas, remember the valor of our soldiers and sacrifices they made to protect our nation and keep us all. Good evening, everyone. On behalf of the UIT alumni cell, I would like to express a heartfelt gratitude to all the members and speakers. On the occasion of Kargil Divas, remember the valor of our soldiers and sacrifices they made to protect our nation and keep us all safe. We bow heads in reverence to the ultimate sacrifice our soldiers made. As a tribute, we pledge to abide by the duties and responsibilities expected from us as citizens of India. Once again, I thank you all. And please do not forget to subscribe to our YouTube channel, UIT Alumni Cell, and press the bell icon. Jai Hind. Thank you, ma'am. We would keep this message with us and move forward now. Srijan, बताइए अब आगे हमारे पास क्या है तिजोरी में? आगे हमारे पास एक झलक तो हम दे ही चुके थे। हमारे शिवम गुप्ता सर की एक बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस तैयार है, तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए ले चलते हैं आपको उसी की तरफ। सर, स्क्रीन इज योर्स। हेलो, नमस्कार सबको। क्या मैं दिख रहा हूँ? सबको विजिबल है? जी सर। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको मेरी तरफ से। मैं शुभम गुप्ता। जैसे कि ये लोग बता चुके हैं, हाँ मेरा 4th ईयर कंप्लीट हो चुका है। अभी रिसेंटली हाल ही में मैंने ग्रेजुएशन पूरी करी है, तो हाँ एक एलुमनाई। एंड आई गेस दिस इज माय लास्ट इवेंट विद द कॉलेज, सो वांटेड टू मेक इट मोर मेमोरेबल and it is becoming more and more memorable with each passing second. Thank you so much guys. तो अब मैं आप सबके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक कहानी जिसका शीर्षक है शहादत। तो आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आए। तो उस दिन भी रोज की तरह मैं स्कूल में जा रहा था। उस दिन भी मैं रोज की तरह अपने स्कूल से घर जा रहा था, अपने पापा के मनपसंद गाने गुनगुना रहा था। कल चिट्ठी आई थी उनकी कि वे घर आ रहे हैं। कल चिट्ठी आई थी उनकी कि वे घर आ रहे हैं, खास मेरे लिए। हाँ, अरे खास मेरे लिए सरहद से मिट्टी ला रहे हैं। मैं क्या करूंगा उस मिट्टी का? अरे ये कैसा सवाल हुआ? मेरे लिए तो वो मिट्टी मेरी जान है। मेरे लिए वो मिट्टी मेरी जान है। वो कहते हैं ना, वही तो देश की आन बान और शान। ना जाने कितने शहीदों के पैरों को चूमा है उसने। उस मिट्टी की बात कर रहा हूँ कि ना जाने कितने शहीदों के पैरों को चूमा है उसने, और ना जाने कितने सैनिक मस्ती में घूमे हैं उसमें। उस मिट्टी को भरकर मैं मंदिर में सजाऊंगा, पूजूंगा उसे महाकाल के साथ और शहादतों के विजय गीत गाऊंगा।
पूजूंगा उसे महाकाल के साथ और शहादतों के विजय गीत गाऊंगा। मगर मेरी इन विचारों की रेल को एकदम से किसी ने लाल झंडी दिखा दिया। मगर मेरी इन विचारों की रेल को किसी ने एकदम से लाल झंडी दिखा दिया। चौराहे पर अर्थी पर लिपटा एक तिरंगा दिखा दिया। चौराहे पर एक अर्थी पर लिपटा तिरंगा दिखा दिया। पर मैं तना अपना बस्ता गिराया और सलाम किया। मैं तना अपना बस्ता गिराया और सलाम किया, क्योंकि मैं जानता हूँ एक बहुत बड़ी ड्यूटी देने के बाद उस अफसर ने आज आराम किया। फिर मैंने उसके परिवार के लिए कामना मांगी और अपने घर को प्रस्थान किया। जब मैं घर पहुंचा तो ना माँ दिखाई दी, ना बहन की चीख सुनाई दी। जब मैं घर पहुंचा तो ना मुझे माँ दिखाई दी, ना बहन की चीख सुनाई दी। सोचा मैंने कि बाहर गए होंगे किसी काम से, सोचा मैंने शायद मार्केट गए होंगे किसी काम से। यही मौका है, अपना मैथ्स का टेस्ट छुपा देता हूँ अलमारी में आराम से, क्योंकि फिर ना जाने ये मौका कभी मिले ना मिले। फिर जैसे ही मैं अपने कमरे की अलमारी खोलने गया, जैसे ही मैंने अपने कमरे की अलमारी खोली, मुझे मेन गेट खुलने की आवाज आई। मैं समझ गया था कि मेरी शामत आई। मगर नीचे से आवाज आई, अन्नी। हाँ जी आंटी। बेटा वो तुम्हारे पापा आ गए। उन्होंने तो बोला था वे जल्द आएंगे और सरहद से मेरे लिए मिट्टी भी लाएंगे। पर चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। मैं आज ही वो मिट्टी मंदिर में सजाऊंगा, रोज उसके आगे दीप भी जलाऊंगा। मैं दौड़ा दौड़ा नीचे गया और पूछा, आंटी पापा कहाँ हैं? आंटी बताओ ना, पापा कहाँ हैं? अच्छा, वो तो मम्मी के साथ मेरे लिए बाजार से एक सुंदर सी शीशी लेने गए होंगे, या फिर हो सकता है बहन की किताबें लेने गए होंगे। चलो जो भी है, जब भी वे घर आएंगे तो मैं साथ में बैठ के उनकी मनपसंद सब्जी खाऊंगा। अपनी तो मैं रोज ही खाता हूँ ना। तो जब भी वे घर आएंगे मैं साथ बैठ के उनकी मनपसंद सब्जियां खाऊंगा, उनके कंधे पर चढ़कर उनके बाल सहलाऊंगा और वो मेरे बाल सहलाएंगे और हम खूब गप्पे लड़ाएंगे। पता है आंटी, पता है पापा जब भी सरहद से आते हैं ना, वो मुझे बहुत सारे किस्से सुनाते हैं। वो मुझे किस्से सुनाते हैं सरहद के, अपने दोस्तों के, रेडियो के, चिट्ठी के। वे मुझे किस्से सुनाते हैं देश के, देशभक्ति के और उसकी मिट्टी के। फिर मैं आंटी के चारों तरफ घूम घूम कर खुशी से घूमता रहा, उन्हें सब कुछ सुनाता, पापा और मेरे बीच होने वाली सारी बातें उन्हें बताता। पर पता नहीं क्यों आंटी ने मुझे एकदम से रोककर मुझे बहुत तेज थप्पड़ मारा और फिर गिरकर खुद रोने लगी। आंटी ने मुझे रोककर खूब तेज थप्पड़ मारा और फिर गिरकर खुद ही रोने लगी। मेरा हाथ पकड़ा, बड़बड़ाई, कभी होश में आती तो कभी खोने लगी। हाथ पकड़ा, कुछ बड़बड़ाई, कभी होश में आती कभी खोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वे क्या बड़बड़ा रही थी। वे मन ही मन कुछ कुछ बोले जा रही थी और अंत में वे फूट फूट कर रोने लगी, मानो मेरी कमीज अपने आंसुओं से धोने लगी। मैंने उन्हें आराम से बिठाया, एक गिलास पानी भी पिलाया और फिर मुंह फुलाकर बोला उनसे, आंटी ये जो अदब, ये ढंग मैंने दिखाया है ना, ये जो अदब, ये ढंग मैंने अभी दिखाया है ना, ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। ये जो अदब, ये ढंग मैंने अभी दिखाया है, ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया। ये सुनकर उन्होंने मुझे जोर से गले लगा लिया। मैंने भी सांत्वना देते हुए उन्हें गले लगाया। मगर फिर उन्होंने मुझे बताया कि करीब 1 घंटा पहले घर पर एक गाड़ी आई थी। करीब 1 घंटा पहले हमारे घर पर एक गाड़ी आई थी। वो तेरे पापा का मृत शरीर लाई थी। कुछ दिन पहले हुए कारगिल के युद्ध में तेरे पिता शहीद हो गए। काफ़ी लंबी ड्यूटी करी थी उन्होंने, इसलिए थक कर अब वे भी सो गए। ये बात थोड़ी पुरानी है, मगर वो शीशी मंदिर में आज भी रखी है। मगर उस शीशी में मिट्टी मेरे पिता नहीं, मेरी माँ लाई थी। मगर उस शीशी के लिए मिट्टी मेरे पिता नहीं, मेरी माँ लाई थी। और जैसा मैंने बोला था, मैं उस शीशी को मंदिर में सजाऊंगा,
पूजूंगा उसे महाकाल के साथ, शहादतों के विजय गीत गाऊंगा। पूजूंगा उसे महाकाल के साथ और शहादतों के विजय गीत गाऊंगा। धन्यवाद। बहुत शानदार शुभम भैया, बहुत शानदार। क्लैपिंग फॉर यू। चिट्ठी आई है, वे आ रहे हैं, सरहद की मिट्टी घर ला रहे हैं। शानदार। आपकी कविता के हर एक एक शब्द में जो भाव प्रकट किए हैं आपने मिट्टी के रूप में, वे बेहद खूबसूरत थे। बहुत शानदार। शुक्रिया शुभम भैया। मैं यही कहना चाहूंगा कि सब कुछ अच्छा था, बाकी ये मेरी लास्ट परफॉर्मेंस है ऐसा मत बोलिए, बिकॉज यहाँ यूआईटी में कोई भी इवेंट होगा, वी ऑलवेज रीच अप टू यू कि आप आए और परफॉर्म करें। हम हमेशा यही कोशिश करेंगे, और यही एक लेगेसी है जो आप लोगों से हमने सीखी हमारे सीनियर से, उसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपका जो भी डिसीजन हो, इट्स ऑलवेज रिस्पेक्ट। Thank you so much, Reason. Thank you so much, and that really means a lot to me. जी सर। इंडियन फोर्स जो भैया की कविता से भी देखने को मिला, एक इंडिविजुअल फील नहीं है, एक सिर्फ आर्मी पर्सनल की लाइफ नहीं है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स, जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से अफेक्ट होते हैं, वो सब कुछ दिखाता है। और बलिदान वो सब करते हैं। क्या कहना चाहोगे तनवीर? बलिदान का जो समय होता है वो किसी को पता नहीं होता। बहुत खूब कहा है इन्होंने। ये एक अंदर से एहसास जगाता होता है, और वो एहसास बहुत ज़रूरी है। वही हमें अपना इंसान होने का मतलब सिखाता है। तो आगे बढ़ते हैं सृजन। हाँ चलो, तो फिर थोड़ा सा माहौल को बनाते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सा। तो हमारे पास नेक्स्ट कमेंट्स के थ्रू देखा मैंने काफी ज्यादा फैंस तैयार हैं। श्रीजा नंदी, उसकी परफॉर्मेंस आने वाली है, तो सब लोग काफी तैयार हैं। और तनवीर, मैं तुमको एक हल्का सा स्पॉइलर देना चाहूंगा कि ये परफॉर्मेंस ऐसी होने वाली है कि आपको अपने पुराने स्कूल डेज वगैरह की सब कुछ पूरी याद आ जाएगी। तो करते हैं शुरू। It is rightly being said, when 70 million voices are heard and many million hands have taken swords, how can we say that our mother India is a helpless woman? She is indeed the 10-handed Durga, goddess of wealth, residing on the lotus. She is the bestower of speech and knowledge and a proud mother of over 12 lakh fighters who gave their today for our tomorrow. So, in remembrance of these warriors, we have Srija from CSC 3rd year with us, a small dance performance. Hope you'll all like it. So, Srija, screen is yours. Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sukhalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Syamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhrajyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.
चला है ये बागी, जो भी देखे वो शीश निभाए। अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए। अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती पे सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। जो तो फिर भी नहीं बुझ सकेगी, दीप चाहे दे कोई बुझाए। अल्लाह बोल। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले, सप्तकोटि भुजैत्र कर करवाले। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले, सप्तकोटि भुजैत्र कर करवाले। अगोलकनु महत बोले, बहुबर धरणिं नमामि तरिणिं विपुदल वरिणिं। मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। ही दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी। वाणी विद्यादायिनी, नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां। मातरं कमलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं। मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, Thank you, Srija, for your lovely performance. So, guys, today we have come to a lovely event, the Kargil Vijay Divas. I think as much as we could have